চাকুলিয়া বিধানসভা তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালগাঁও হাটে কংগ্রেসের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার বিকেলে। সভায় উপস্থিত ছিলেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা আলী ইমরান ভিক্টর, কংগ্রেস নেতা মহসেন রামানি, মুক্তার আলম, সেতাবুদ্দিন মুন্না সহ তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন আয়োজিত জনসভায় বক্তব্যের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দেন প্রাক্তন বিধায়ক ভিক্টর। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্নীতিমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার স্লোগান দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট করার সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন সবাই প্রায় 430 জন তৃণমূল ছেড়ে প্রাক্তন বিধায়ক ভিক্টরের হাত ধরে কংগ্রেসে যোগদান করলেন বলে দাবি কংগ্রেস নেতৃত্বর। আজকে তরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতে গোয়ালগাঁও হাটে আমাদের এখানে তৃণমূল বুলডোজার চালিয়ে আতাবুলের দোকান ভেঙে দিয়েছিল। সেই নিয়ে পুলিশকে এফআইআর করা হয়, পুলিশ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সেই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আমরা থানায় ঘেরাও করে এফআইআর করিয়েছিলাম, তারপরও পুলিশ কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে হাইকোর্টে মামলা করতে হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে আতাবুলের বাড়ি তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই বাড়িটা আজকে পুনরায় তৈরি হলো, তার উদ্বোধন করা হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে 424 জন পরিবার আজকে গোয়ালগাঁওতে এখানে হাটে যোগদান করলো তৃণমূল এবং সিপিআইএম ছেড়ে। দাদা, আরো একটা কোয়েশ্চেন, যে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি চাকুলিয়াতে ভিক্টর, গোয়ালপুকুরেও ভিক্টর, আর ইসলামপুরেও ভিক্টর, চোপড়াতেও ভিক্টর, এমনকি করণদিঘিতেও আবার শুরু করেছে। তাহলে কি এটা ধরে নেওয়া যাবে যে উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেস মানে ভিক্টর? না, কংগ্রেস মানে হচ্ছে কংগ্রেস হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার আগে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। প্রায় 137 বছর পুরনো পার্টি। সেখানে ভিক্টর তো সবে মাত্র আরম্ভ করেছে। তো ভিক্টর এর জন্য কংগ্রেস হচ্ছে এটা না, কংগ্রেস হয়েছে, তাতে ভিক্টর হয়েছে এবং কংগ্রেসের মাটি ছিল, সেই মাটিটাকে পুনরায় আমরা শক্ত করতে পারছি সমস্ত জনগণের এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমর্থনে। সমস্ত বিধানসভাগুলোতেই তো আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি যে আপনি সেই কমিটি ঠিক করে দিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আন্দোলন করছেন। তাহলে সেখানকার স্থানীয় নেতৃত্বরা তাহলে কি আছে? সমস্ত নেতৃত্বরাই তো দায়িত্ব দিচ্ছেন বলেই তো আমি করতে পারছি। যদি স্থানীয় নেতারা দায়িত্ব না দিতেন তাহলে তো এটা সম্ভব না। আমাদের উত্তর দিনাজপুরে যিনি সভাপতি মাননীয় মহেশ গুপ্ত মহাশয়, উনি দায়িত্ব দিয়েছেন কি তুমি এগিয়ে চলো, আমরা পিছনে আছি সবাই। তো ওনাদের সাহসেই আমি এগিয়ে যাচ্ছি। কংগ্রেস পাশে আছে, আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আছেন, আমাদের অন্যান্য যারা নেতৃত্বরা আছেন কংগ্রেসের, প্রদেশ কংগ্রেসের, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সবাই पासे आছেন বলেই এই লড়াইটা আমি করতে পারছি। एक सवाल के यहाँ की अगर बात करें गोलगांव हाट की, तो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिला, जिसमें एक अताबुल की दुकान की जो बात आपने कही उसको जेसीबी के माध्यम से तोड़ दिया गया। उसके बाद देखा लोगों ने क्या हुआ, बाइकआउट ऑर्डर आया, फिर दुकान यहाँ पे तैयार है। तो वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो ऐसी जो तस्वीर और कई जगह से निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर इस तरह की घटना सामने आ रही है। तो क्या प्रशासन जो है अभी के टाइम लोगों के साथ नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सरकार गुंडे बदमाशों के साथ है। जो आवाम पर जुल्म ढा सकता है उसकी ताकत के बल पर तृणमूल सरकार चलाना चाहती है और पुलिस प्रशासन को अपने मुट्ठी में रख के गुंडे बदमाशों को मदद करने का काम कराती है। आम आदमी की परेशानी में पुलिस प्रशासन कोई भी काम नहीं करती है। इसका कई मिसाल हम दे सकते हैं। चकलिया में एक अताबुर का मिसाल है कि एक गरीब आदमी का रोज़गार को बर्बाद कर दिया गया। हज़ारों लोगों के सामने कुछ चंद मुट्ठी भर गुंडों ने तृणमूल की मदद से, पुलिस की मदद से बुलडोज़र चला के उसका दुकान तोड़ दिया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्या है? यहाँ पर ये हुआ। इसी तरह का अगर आप देखना चाहें तो अभी जो बात हम बता रहे थे कि गुंजरिया में एक ही परिवार के 4 भाई पर का कत्ल कर दिया गया, उसके एक को भी सज़ा नहीं मिली, पुलिस किसी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये देखने को मिल रहा है। उसी तरह करंदीगी में ज़बरदस्ती ज़मीन पर घर बना दिया गया, बेचारा गरीब आदमी होता रहा, एफआईआर करने के लिए गया, पुलिस उल्टा उसी को लॉकअप में बंद करके रख दी।
और वो लॉकअप में बंद रहा और उसकी ज़मीन पर घर बना दिया गया। तो ये जो हरदर्मी सरकार कर रही है, पुलिस जो कर रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठने की ज़रूरत है। लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि भले मेरे साथ ना हो, मेरे पड़ोस में अगर किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है तो उसके साथ हम सबको मिल के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर समाज में हर आदमी को एक दूसरे से हाथ मिलाकर जो मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। तृणमूल की जो ताकत है, गुंडा ताकत या पुलिस प्रशासन की ताकत, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगी और उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से पूरी लीडरशिप तैयार है। अच्छा, एक यहाँ से एक आरोप भी आप पर लगाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि अताउर की ज़मीन जो है, करबला की ज़मीन, उसको गैर कानूनी तौर पर जो है पट्टा किया गया, उसके बाद उसको तोड़ा गया था और आपके बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने के लिए इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस पर आपका क्या बयान है, जो आरोप आप पर लगाया जा रहा है? पहली बात है तो यकीनन आप अताउर के साथ खड़े हैं एक साधारण व्यक्ति के तौर पर उनका, या फिर यकीनन आप अपना राजनीतिकरण कर रहे हैं? तो आरोप है। मैं सीधी बात है, ये आरोप बेबुनियाद है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, तो पहली बात है, अगर ये करबला की ज़मीन है तो करबला की ज़मीन का कागज़ दिखाए ना। वो रात के अंधेरे में एमएलए को लेके BLRO ऑफिस में चोर की तरह जाकर कागज़ को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उसको बदलने के लिए कौन गया था? वो तो यहाँ के एमएलए साहब और यहाँ के कुछ तृणमूल के जो नेता के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग गए थे रात के अंधेरे में। मैं तो नहीं गया था BLRO के पास कागज़ बदलने के लिए। और रहा सवाल ये ज़मीन करबला की है, तो अगर ये ज़मीन करबला की है तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, फिर इसी करबला की ज़मीन पर पैसा ले लेकर दुकान बैठाने का काम कौन करता है? ये वही लोग करते हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर किसी गरीब मजलूम के साथ जुल्म होता है तो उस जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं इस इलाके का एमएलए रह चुका हूँ। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं सियासी एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी पार्टी का जो उसूल है कि जुल्म और सितम के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहना और हक और इंसाफ की बात करते रहना, और लोगों को हक और इंसाफ दिलाने के लिए जिस हद तक हम लोगों से चला जाएगा उस हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। जो विचारधारा आपकी पहले से चली आ रही थी उसी पर अब भी कायम है? बिल्कुल, हमारी विचारधारा जो थी गरीब मजदूर किसान के लिए, इंसानों के हक के लिए, गरीब मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, जायज़ लड़ाई को लड़ने के लिए, वो आज भी है। ठीक है।